Images of the aftermath, the cyclone aftermath, tragic as we see. Many of the villages there have completely lost out on electricity. It's now difficult for those villagers to really cope with this kind of flood situation without power. In fact, we see even 2 people have lost their lives in the floods. We're going to take you through a lot more on that with our reporters on ground, bringing us this very ground report from where the areas have been worse affected. This morning, 4 or to 5 a.m. onwards, the flood-like situation started. आइए सर, आइए, आगे आइए. ये जो स्कूटर है ना, ये स्कूटर वाला घर है, डोर बंद का, वहीं पर उसमें बच्चे भी हैं. वो लोग को हाँ वो कह रहे थे हमें बाहर जाना था. एक महिला थी, वो हमारे साथ आ गई हैं. बाकी सारे लोग अभी भी अंदर हैं. एक बार पूछ लीजिए, आप मिल लीजिए उनसे, पहले देख लीजिए कितने लोग हैं. असेसमेंट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा. So one of the India, because we have been also requesting the administration wherever the evacuation required, and the information, the news reports probably will help out the people in the affected area. There you see, this is exactly depth of the water. And ask Sanjay to gradually move further, take every steps very carefully. You never know, there are manholes nearby. Since we already followed this trajectory, this path, just an hour ago, यहाँ एक बच्चा है, तो ये लोग कह रहे हैं ये ऊपर चले जाएंगे, इनसे पुलिस जाने. बस उस वाले घर में ज्यादा लोग हैं. बाहर जाना क्या आप लोगों को? ये लोग मदद के लिए आए हैं, बाहर निकालने के लिए. ये आए हैं, जाना है तो ये लोग निकाल देंगे बाहर. बच्चा है छोटा उस वाले घर में, उनमें 2-3 बच्चे हैं, तो वो कह रहे थे हमें बाहर सुरक्षित जाना है किसी इलाके में. तो उनमें से एक को हमने निकाला था, बाकी सारे छोटे बच्चे ज्यादा हैं. So this would require, do you see the depth of the water? This explains the fury of this cyclone, the mayhem it has literally. Though, you know, there is a good news that, Paulami, we can really be thankful to the nature. There is not massive loss to the lives. So somehow it is only past for the damage to the public property, which will be restored, of course, it would take a couple of months, maybe maximum, to restore. ये वाला घर है. इस वाले घर में कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं. इनको बाहर जाना था. So we just got an Indian persons along with us. They will communicate. This is what is required. आप बात कर लीजिए जिनको जाना था. This is also need of the hour. ये ले आया मदद के लिए इन्हीं लोग को. बोट लेकर के आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आए हैं. अब परेशान मत हो, निकल जाएंगे. मैं इनके साथ हूँ, आप ले आइए. You know, finally the help has reached here. They wants to evacuate from this place. There is elderly senior citizen in the home, elderly women, children, and we have been appealing to the authorities by sending out the messages to get help as much as possible, and some of these Indian officials will ensure. ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, आप लेकर के आ जाइए. ठीक है, आराम से. हाँ, कोई बात नहीं. बोट अब तो है ना, मैं यहीं पर हूँ, मैं चलता हूँ, धीरे धीरे आऊँगा बाहर. बाहर मत आना, आप लोग के लिए मदद आ रही है यहीं पे. बोट लेकर के आ रहे हैं, निकालेंगे. जो ले जाना है सामान पैक कर लीजिए, काम भर का सामान रख लीजिए. ठीक है, जितना सामान चाहिए उतना ही रखिएगा. आ रहे हैं लेकर के. So this is indeed a Paulami need of the hour to ensure the rescue operation, relief operation must go on, and we're trying our reports also to be helpful for the authorities to ensure they reach us on time, particularly those who are really in dire need, the senior citizen, children, small kids in this area. और मांडवी के जिस इलाके से आज तक ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जहां कई सारे परिवारों को मदद की जरूरत थी, और अब उसके बाद हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची है बचाव कार्य के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए जरूरत थी बुजुर्ग महिलाओं की. एक परिवार था, कई सारे लोग हैं जो ऊपर चले गए, ऊपरी मंजिलों पर चले गए, लेकिन जो बच्चे थे, बुजुर्ग महिलाएं थे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाना था. सबसे ज्यादा वही जरूरत थी. तो ऐसे में देखिए, अब ये पानी दरअसल इतना ज्यादा है कि यहाँ पर नाव नहीं उतारी जा सकती, क्योंकि ऐसी नाव जो है उनको फटने का डर है. तो अब जो एनडीआरएफ के लोग हैं, हाथ में ट्यूब, लाइफ जैकेट लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले उस परिवार को निकाला जाए. देखिए, यहाँ कई सारे लोग थे, ये इन्होंने ऊपरी जो मंजिल है उस पर शरण ले ली है, ये वहाँ चले गए हैं. लेकिन हम मदद लेकर के आए हैं उन परिवारों के लिए कि उन्हें कम से कम निकाला जा सके, क्योंकि उन्हें बुजुर्ग महिला थी और छोटे बच्चे थे. एक बार वो सड़क तक पहुँच गए इस गहरे पानी में,
तो उसके बाद वो सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं, क्योंकि घर में बिजली है नहीं तो फ़ोन चार्ज कर नहीं सकते, मदद मंगा नहीं सकते। पानी का स्टॉक भी लिमिट सीमित होगा, क्योंकि अगर मोटर नहीं चल रहे हैं तो पानी भी नहीं पहुंच पाएगा घर में। खाने पीने का स्टॉक भी सीमित होगा। आज मदद के लिए आखिरकार हमने लेकर के आए हैं, कम से कम एक वो जो परिवार है जिनको निकाला जा सके, उन्हें मदद मिल सके। में फंसे हैं उन्हीं लोगों की मदद के लिए हम एनडीआरएफ की टीम को यहां पर लेकर के आए हैं। आज तक ने अपनी ओर से पहल की कि एनडीआरएफ की टीम को ये जानकारी दी कि यहां कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है, और उस खबर का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ के ये तमाम जो देवदूत हैं वो आए हैं। क्योंकि देखिए, हम यहां से एक महिला को ही निकाल पाए थे। एक्सपर्टीज एनडीआरएफ की इस तरह की ट्रेनिंग है कि बच्चों को छोटे छोटे निकाला जाए। देखिए, ये बुजुर्ग महिलाएं थी, लाइफ जैकेट इनको लिया गया है, और ये आज तक की पहल के बाद जैसे हमने उन्हें जानकारी पहुंचाई है, उनकी तमाम सारी टीमें पहुंची, क्योंकि इस घर में कई सारी बुजुर्ग महिलाएं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि एक पूरा परिवार था जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा थी, और चूंकि पानी गहरा भी है और शैलो भी है, 1.5 से 2 फीट पानी में बड़ी नाव नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में जरूरत है कि इनको बहुत सावधानी से निकाला जाए, क्योंकि माता जी बहुत ज्यादा परेशान थी। और जब हम यहाँ पर आए थे, इनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि कम से कम इनका संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके घर में परिवार के किसी के पास मोबाइल फोन की बैटरी नहीं चल रही थी। और वहां पर पीछे 2-4 लोग हैं, मैं पकड़ लेता हूँ, अब निकालिए। तो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इन लोगों की। अब देखिए, पानी इतना गहरा है, इतने में मोटर बोट नहीं चलाई जा सकती, तो सबसे जरूरी होता है कि लाइफ जैकेट पहना करके, देखिए यहाँ पर बच्चों को कंधे पर लेकर के, और जरूरत का सामान, हमने को कहा था कि आप जरूरत का सामान पैक करके रखें, थोड़ी देर में मदद आएगी। और हमने एक छोटी सी कोशिश की कि एनडीआरएफ के लोगों के जरिए जानकारी पहुंच जाए, और एक बार जानकारी हो जाती है तो मदद बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार इनको सुरक्षित इलाकों में निकाल लिया गया तो आप समझिए कि कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। एक परिवार मुश्किल से कम पूरे परिवार को अब निकाल लिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां पर लोग फंसे हैं, किसी भी तरह से वो संदेश देने में कामयाब रहे, किसी तरह कोशिश करें कि संदेश अगर पहुंच जाएगा तो मदद भी उन तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये साधारण मानव की क्षमता के बिल्कुल विपरीत है, वो भी तब जब तबाही ऐसी हो, सैलाब का मंजर ऐसा हो। इसलिए आज तक के कैमरे पर आप ये लाइव ऑपरेशन देख रहे हैं एनडीआरएफ का, उस इलाके से जहां की खबर आज तक ने दिखाई थी कि लोग वहां, परिवार, उन्हें वहां रेस्क्यू की जरूरत है। एक छोटी सी कोशिश हमारी ओर से थी कि यहाँ पर इनको मदद मिल जाए, और वो मदद, देखिए, ये एक बहुत सुखद अनुभव होता है किसी रिपोर्टर के लिए, और मैं वो खुशी अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। एक छोटी सी कोशिश, और कोशिश के बाद एक पूरे परिवार को मदद मिल जाना, आप समझते हैं, ये शायद इससे ज्यादा पुण्य कमाने जैसी और कोई बात होती नहीं। पहुंचे, और हम देख रहे हैं कि पहली एनडीआरएफ की बसें जो आ रही है, और ये संभवतः उन्हीं इलाकों के लिए आ रही है जहां से हम अभी होकर गुजरे हैं। कई लोग हैं जिनको वहां से इवैक्यूएशन और रेस्क्यू जरूरी है, उन्हें वहां से निकालना जरूरी है। और ये देखिए, पूरा इलाका जलमग्न है, और अब ये जो है ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम सारे लोग उन इलाकों में जाएंगे ताकि वहां से लोगों को निकाला जा सके। तो देखिए, तमाम सारे लोग जा रहे हैं, ये वहीं पर ऑपरेशन चलाने के लिए जा रहे हैं। तो हम इसी बस में सवार होंगे, क्योंकि लो लाइन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव है।